Wisdom Academy. Today, before starting this video, I want to thank to all who are watching my NIOS series, because when I started NIOS series, I was not expecting so much love, so much appreciation which you are giving me. There are so many subscribers who are continuous watching my NIOS series. So thanks to all, thanks to them, thank you so much. You are giving me so much appreciation which I was not expecting. Because I am new on YouTube. I started my YouTube channel just 40 days before, so I have no audience, I have no more than subscriber comparison to other channel, but still I am doing something and you are continue appreciating this. So this is because of all of you. I am doing this video, I am making this video, so because of you, because you motivates me to do more things, to improve myself, to make more videos. Like you continues doing like the Please Stop NIOS series. I continuously watching your videos. You are explaining good and this is very helpful me. So I am here to help, not to waste your time or mine also, because we are aspirants, we are preparing, we are learning, so we are here to learn also. But you are giving me so much appreciation which I was not expecting. In my you can also observe in every video I never say please subscribe my channel or like my videos, because if you see my hard work, or if see there is a good in video, there is a good content, or there is a good thing video, you will automatically subscribe my channel or like my video. But it will not, no matter how many times I will say you please subscribe my channel, you will not, because it's all about internal motivation. So I am asking nothing to you, but you are giving me so much love, so much appreciation, so thank you so much. It's also give me to it's motivates me to do more things to do. So that's why I am here, and I want to thank to you, and also who are watching my videos on continue basis. So thank you so much. But today I want to say please keep supporting me, please keep support, please watch videos on regularly, and I will also post on regular basis. So which result you are giving me, this is recommendable. So thank you so much. Okay, now back to the point. अब अपनी वीडियोस पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. मुझे आपको थैंक यू बोलना था. अब अपनी वीडियोस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका. बट आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह लास्ट वीडियोस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. जब हमने NIOS सीरीज को पढ़ना स्टार्ट करा था, हमने 501 बुक उठाई थी, जिसमें पहली बुक में हमने पढ़ा था कि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर रूल कर रहा था, तो उन बदतमीजों ने हमारी एजुकेशन को सुधारने के लिए क्या क्या करा था, क्या क्या हमारे लिए रूल बनाए थे, क्या क्या नियम कानून बनाए थे, हमने पढ़ लिया. फिर जब हम सेकंड चैप्टर में आते हैं तो हम आजाद हो चुके थे. आजाद होने के बाद बहुत सारे आयोग बनाए गए. रोज बोलती हूँ, आज आप अपने मन में रिपीट करो कौन कौन से आयोग बनाए गए थे. ठीक है, 4 आयोग का नाम आपने ले दिए होंगे जो मैं रोज लेती हूँ. इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर में. थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन को हमने डिटेल में पढ़ा था कि राइट टू एजुकेशन आ जाने के बाद हमारे संविधान में क्या क्या चेंज हुए, कौन सा आर्टिकल चेंज हुआ, कहाँ पे शिक्षा का अधिकार डाला गया, शिक्षा के लिए बच्चों के लिए क्या क्या गया, एक्सेट्रा. जब हम फोर्थ चैप्टर में आ गए तो हमने पढ़ा कि भाई इन्होंने राइट टू एजुकेशन तो बना दी, पर राइट टू एजुकेशन को लागू करने के लिए उन्होंने संस्थाएं क्या क्या बनाई हैं. तो उसमें आपने बहुत सारी संस्थाएं पढ़ी थी, NCERT, SCERT, ठीक है, ये सब. जब हम फिफ्थ चैप्टर में आए तो फिफ्थ चैप्टर में हर योजनाएं बनाई गई थी, हर राज्यों की अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी. तो हमने उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा योजना पढ़ी थी, बिहार की योजना पढ़ी थी, एक तमिलनाडु की योजना थी, वो मैंने बताई नहीं थी, बस छोटा सा पॉइंट है उसका. और एक महाराष्ट्र का हमने केस स्टडी करी थी. महाराष्ट्र के लिए बहुत अलग अलग महाराष्ट्र ने बनाई थी, अपंग बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, दूर शिक्षा वालों के लिए बहुत सारी परियोजना बनाई थी. तो हमने महाराष्ट्र की केस स्टडी करी थी. ठीक है, उसके बाद आता था हमारा सिक्स चैप्टर. सिक्स चैप्टर में हमने क्या करा था, उसमें हमारा DPEP भी हमने उनके बारे में पढ़ा था. और फिर कल सिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब सर्व शिक्षा अभियान, जब राइट टू एजुकेशन नहीं आया था, सर्व शिक्षा अभियान को किस तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया गया था. पूरी दुनिया इन द सेंस कि पूरे भारत में कैसे फैलाया गया था. सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या काम करे गए थे, क्या क्या चीजें करी गई थी, वो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हमने सीखी थी. ठीक है, तो उसके बाद आज हमने पढ़ना है कि जब हमने सर्व शिक्षा अभियान को लागू कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ने लग गया, तो हमने स्कूल के बेसिस पे क्या काम करा. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन. देखो हमने बहुत सारी चीजें सर्व शिक्षा अभियान में पढ़ी थी. पैसा कहाँ से मिलता है, उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, काम क्या करती हैं, योजनाएं क्या चलाई. बट अब हम इस वीडियो में, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि योजनाएं लागू कैसे हुई, कि मतलब आयोजन कैसा किया गया. कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर जगह का मापदंड ना अलग अलग होता है.
कहीं पे समतल एरिया है, कहीं पे पहाड़ वाला एरिया है, कहीं पे मरुस्थल वाला एरिया है। तो एक तरीके की योजना हर जगह लागू नहीं हो सकती। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन किया गया था या प्रबंधन हर जगह एरिया में या फिर मतलब अलग अलग तरीके से किस तरह किया गया था। ठीक है, और अगर मैं ये देखूं तो ये जो है ना एनआईओएस की दृष्टि से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको 2 वीडियो में करने वाले हैं, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में करने वाले हैं। क्योंकि देखो अगर मैं लगातार अभी यहाँ पे रहूं और मैं बोलती रहूं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की वीडियो बनाऊं, तो आप भी क्या हो 2 घंटे की वीडियो देखते देखते ना बोर हो जाओगे, आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपको पता होगा ना कि एक जो आइडियल स्टूडेंट है वो भी 45 मिनट तक लगातार अपना ध्यान दे सकता है, उसके बाद दिमाग में कंटेंट जाना बंद हो जाता है लिटिल बिट, है ना। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। क्योंकि देखो अगर मुझे सिर्फ वीडियो ही बनानी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं 1-2 घंटे में बताने वाली हूँ जैसा कि मैं रोज करती हूँ, तो आधे घंटे की वीडियो में इसको चैप्टर को बता के खत्म कर दूं, ऊपर से चैप्टर बता दिया और खत्म कर दूं। बट मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, मुझे आपको सच में इससे गो थ्रू कराना है कि रियल में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं या हमें क्या पढ़ना है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी जब आप ये चैप्टर पढ़ो तो एक बार में एक चैप्टर ना करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है और कंटेंट के साथ साथ इसमें ऐसी चीजें जिसे हम स्किप नहीं कर सकते, हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो इसमें हम पार्ट ए करने वाले हैं और पार्ट बी हम कल करेंगे। मैं बना तो वो वीडियो आज ही दूंगी बट अपलोड बाद में करूंगी, ताकि पहले आप इस वीडियो को देखो। इसके बाद कुछ बच्चे कह रहे थे हम पहले इस वीडियो को देखते हैं फिर एनआईओएस में से पढ़ते हैं, तो आप यही करना, जितना मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी आप उतना ही एनआईओएस में से पढ़ना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट आप बाद में लेना। बाकी अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप एक दिन में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आप पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ने वाला मिलेगा। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या है, हमें इसमें पढ़ना है कि जब ये आयोजन और प्रबंधन करने की बात करी गई थी तो ऑब्वियसली ये पूरे देश में होगा। ठीक है, तो अब ये था कि हम किस प्रणाली को अपनाएंगे, मतलब आयोजन किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें एक ही साथ दे रखा था केंद्रीकृत प्रणाली और विकेंद्रीकरण प्रणाली, बट मैंने इसको अलग अलग लिखा है क्योंकि मैं आपको अलग अलग डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि ये दोनों प्रणालियां होती क्या है। जो बिजनेस का स्टूडेंट रहा होगा उसको पता होगा, पढ़ा होगा उसने सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर क्या आता है कि मान लो एक छोटा सा ले लेते हैं, स्कूल ले लेते हैं, स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल में मान लो प्रिंसिपल है सबसे बड़ी पोस्ट पे, प्रिंसिपल ने कुछ ऑर्डर दिया टीचर को, टीचर सेम चीज बोलेगा बच्चों को, बच्चों वही चीज बोलेंगे पेरेंट्स को। मतलब कि मान लो टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि सब बोलो 500 रुपए कलेक्ट कराओ, तो प्रिंसिपल जाएगा टीचर के पास, टीचर को बोलेगा बच्चों से 500 रुपए लो, फिर बच्चे टीचर जाएंगे इसके पास, बच्चों के पास, बच्चे जाएंगे पेरेंट्स के पास। मतलब ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि केंद्रीकरण चलता है। केंद्रीकरण मतलब सबसे ऊपर वाला कोई ऑर्डर देगा तो सेम वो नीचे वाले को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर वही वो ऑर्डर देगा नीचे वाले को पूरा करेगा, ये पूरा करेगा। इसमें जो और सारे पैसे जाएंगे फिर किसके पास, प्रिंसिपल के पास। तो इसमें जो मेन पावर होती है ना वो सबसे ऊपर वाले के पास होती है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उच्चतम अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी जो होता है, सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठा होता है, सबसे ज्यादा पावर उसमें होती है। ठीक है, वो जैसा बोलेगा ना उसको वैसे ही करना पड़ेगा। टीचर, स्टूडेंट या कोई भी जो बीच में और मीडिएटर होंगे वो उसमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो ऊपर वाले ने बोल दिया उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है हमारी केंद्रीकृत प्रणाली। इसको अगर हम अपने सिस्टम से लेकर के चले तो क्या हो गया कि मान लो कोई हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बना, एजुकेशन मिनिस्टर ने जो ऑर्डर दिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया वही स्टेट को पूरा करना पड़ेगा, फिर स्टेट से वो डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, डिस्ट्रिक्ट से वो एक स्कूल में, और एक स्कूल से पूरे बच्चे उसमें जाएगा। मतलब मेन अधिकारी यही है। और यहाँ पे जो ये चीजें आती रह रही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लागू होंगी जैसे कि सबसे ऊंचे वाले ने बोला है। ठीक है, उसमें जो अधिकारी होता है ना उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, वो सबसे ऊपर वाले के पास होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि केंद्रीकृत प्रणाली क्या होती है। मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि प्रणाली क्या होती है, इसको अभी हम रिलेट करेंगे अपनी एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, इसके बाद विकेंद्रीकरण प्रणाली क्या होती है, ये भी सेम ही है, बट इसमें क्या होता है शक्तियों का ना विभाजन हो जाता है, शक्तियों का विभाजन। मतलब कि मान लो ये इसने यहाँ पर करा तो एजुकेशन मिनिस्टर ने स्टेट को बांटा, तो स्टेट तो बहुत सारे हैं। अब ये जो सारे स्टेट है ना ये इसको सेम टू सेम फॉलो नहीं करेंगे, इनके पास कुछ शक्तियां होंगी, इनको शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, इसमें जो विभिन्न तरीके की, ये अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब कि सारा का सारा मेन अधिकारी यही नहीं है, इसमें शक्तियों का विभाजन हो जाता है हर स्तर पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, आगे आते रहेंगे, इसी तरीके से शक्तियों का विभाजन रहता है एक बराबर वाले पे। मतलब कि
एक जो अधिकार आंध्र प्रदेश को दिए जाएंगे वही सेम अधिकार तमिलनाडु को दिए जाएंगे और वही सेम अधिकार जम्मू कश्मीर पे दिए जाएंगे। तो इनमें जो इस लेवल पे ना शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा बराबर लेवल पर, बराबर बराबर सबको शक्तियां मिल जाएंगी और इनके पास भी शक्तियां होंगी। ये होता है शक्तियों का विभाजन। तो इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण प्रणाली। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण प्रणाली में तो अब हम ये बढ़ते हैं कि जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण प्रणालियों का यूज होता है ना, वो क्या होता है। देखो, किसी केंद्रीकरण शिक्षा प्रणाली में अधिकांश निर्णय, मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन पर कार्य राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के हाथ में होते हैं तथा राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के हाथ में होते हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली के सभी पक्षों का नियमन करती है। मतलब सारा काम जो है ये सरकारें ही करेंगी। स्कूलों वालों को या स्कूल के जो ऊपर एक पर्टिकुलर जिला होते हैं उनको कोई भी शक्ति प्रोवाइड नहीं कराई जाती। ठीक है, वो उनका नियंत्रण करती हैं, व्यवस्था करती हैं, नीति निर्धारण करती हैं, प्रबंधन कार्य करती हैं, जैसे अध्यापकों को वेतन देना, सेवाकालीन ट्रेनिंग देना, अधिगम का न्यूनतम स्तर, ये सब जो है ना एक जो डिसाइड कर दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या जो एजुकेशन मंत्रालय होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, वो हमारा सारी चीजें करेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री सारे काम करेगी। जो उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, उनको बेसिकली कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते। ये सारे काम ऊपर वाले लोग जो होते हैं उन्हीं के द्वारा करे जाते हैं। वो चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब विकेंद्रीकरण आई तो अब आपको पता लग गया होगा कि भाई विकेंद्रीकरण अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर वाले को पावर ना देके सब में डिवाइड करी जाती है, इक्वली बेस पे सबको अधिकार दिए जाते हैं कि हाँ भाई हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जहां पे भी जिसको अपनी मर्जी चलाने को मिलती है तो भाई वो उसके लिए अच्छा बन जाता है ना। केंद्रीकरण में लोग अपनी मर्जी नहीं चला पाते, पर विकेंद्रीकरण में अच्छे से मर्जी चल जाती है। भाई हाँ, मेरे को ये नहीं पसंद, नहीं हटा, ऐसे करूंगा मैं, और भाई तुम्हारी सुनी भी जाएगी। अगर तुम्हारा विचार अच्छा है, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, अगर तुम काम बढ़िया करो तो तुम्हारी सुनी जाएगी, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी एक सिचुएशन देखो, आप एक जगह पे काम कर रहे हो, आप एक का घर है, एक परिवार है। चलो घर में तो हमारे खैर कोई सुनता ही नहीं है, बट मान लो 2 स्कूल हैं, आप एक स्कूल में पढ़ाते हो, तो एक स्कूल में आप अपने व्यूज देते हो, आप अपने विचार देते हो, तो आपकी सुनी नहीं जाती। मतलब मैटर ही नहीं करता, आप बोलो ना बोलो, आप अपने सुझाव दो ना दो, मैटर ही नहीं करता। ठीक है, बट एक इसके कंपैरिजन में दूसरा स्कूल है जहाँ पे आप बोला जाता है तो आपके विचारों का स्वागत किया जाता है। हाँ हाँ बताओ, अच्छा ऐसे चेंज करना है, अच्छा ये करना है, हाँ मैडम आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, हमें करके देखना चाहिए, इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो आपके विचारों को तवज्जो दी जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी उस स्कूल में ज्यादा जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपके विचारों को तवज्जो दी जाएगी, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेरी बातें सुनी जाती हैं, हमारे अकॉर्डिंग कुछ चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से जब केंद्रीकरण की बहुत सारी नुकसान थे, तो जब विकेंद्रीकरण प्रणाली लागू की गई ना, तो भाई बहुत सारों को मजा आ गया, वो भाई मजा आ गया, हमारी सुनी जाती है, ये हो गया वो हो गया। तो ये जो विकेंद्रीकरण की प्रणाली थी वो एकदम से फेमस हो गई, क्योंकि अच्छी थी। देखो अच्छी तो है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स केंद्रीकरण वाली से ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, हर स्कूल में, स्कूल कह लो या स्टेट लेवल पर, इस चीज को लागू कर दिया गया कि हमने जो पढ़ाना है ना वो ऐसे ही पढ़ाना है, ये चीज ठीक है। तो ये लागू कर दी गई, वहां पे ये लागू हो गई। तो अब उसके बाद क्या हुआ, विकेंद्रीकरण प्रणाली लागू होने के बाद पहले तो इसका मतलब क्या था, विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप जिला स्तरीय तथा उप जिला स्तरीय अधिकारियों के हाथों में अधिक उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है तथा अधिकारी सैनिक सेवा को उपभोक्ताओं के निकट लाते हैं और अध्यापकों, विद्यालयों तथा स्थानीय प्रशासन को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुक्रियाशील बनाते हैं। यानी कि उसमें बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों को इतनी ज्यादा पावर दे दी जाती है कि आप अपने एक पर्टिकुलर स्कूल में रह करके चेंज कर सकते हो, और जैसा आपके बच्चे बोले, जैसा आपका स्कूल का एनवायरनमेंट है और जैसे कि आपकी वहाँ पे राज्य पे शिक्षा नीतियां हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हो। इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जब इनको हर जगह लागू कर दिया गया तो इसको बोला गया प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको बोला गया प्लान ऑफ एक्शन, और ये 1992 में आया था। याद रख लेना, एक छोटी सी बात है, प्लान ऑफ एक्शन 1992 आया था क्योंकि अब वक्त आ गया था कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें एक्शन पे काम करना पड़ेगा। तो ये वो टाइम था। तो फिर इसके बाद हमें पढ़ना है विकेंद्रीकरण पर भारत का अनुभव। ये तो सालों से चलता चला आ रहा था, सालों से ही चल रही थी। अच्छा मैंने ये 2 बार लिख दिया, ओ सॉरी। तो अब विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण पढ़ा, विकेंद्रीकरण पढ़ा, अब हमें ये पढ़ना है, ये 3rd नंबर पे आएगा। तो केंद्रीकरण प्रणाली तो जिंदगी भर से चलती आ रही थी। तो जब हमने विकेंद्रीकरण पर भारत में लागू करा ना, तो हमने देखे बहुत कमाल के चेंजेस हुए, इंडिया में बहुत ज्यादा कमाल के चेंजेस हुए। तो वो कमाल के चेंजेस क्या थे, ये चारों थे, ये चारों आए थे। ये किसका देन था, विकेंद्रीकरण प्रणाली का। लाइक कि समेकित बाल शिक्षा योजना। देखो अब समेकित शिक्षा क्या होती है, अभी जो इंडिया में टाइम चल रहा है ना, वो समावेशी शिक्षा का टाइम चल रहा है। समावेशी शिक्षा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी आधार पर बच्चों से भेदभाव नहीं करना है,
चाहे वो फिजिकल चैलेंज हो, मेंटल चैलेंज हो, लर्निंग एबिलिटी हो, किसी या गिफ्टेड बच्चा हो या कैसा भी कोई भी बच्चा हो, उसको हमको एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है। बट उससे पहले ना इंडिया में समेकित बाल शिक्षा का बोलबाला था। समेकित बाल शिक्षा क्या होती थी, मतलब कि हमें इसमें बच्चे तो पढ़ाना है, हर एक तरीके के बच्चे पढ़ाना है, किसी भी तरीके का हो, लेकिन इसमें अलग अलग बच्चे पढ़ाना है। कि मतलब उन बच्चों के लिए जैसे जो गिफ्टेड है, मेंटली रिटायर्ड है, या डेफ है, बोल नहीं सकते हैं, या डेफ है, तो उनके लिए अलग स्कूल खोले जाएंगे, और उन बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन पढ़ाया सबको जाएगा। उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, पढ़ाने की टीचर्स रखे जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे, पढ़ाया सबको जाएगा, लेकिन अलग अलग। और इंक्लूसिव ने इनको एक कर दिया, डिफरेंस इतना है। तो उस टाइम पे क्या खुली थी, हमारी समेकित बाल विकास योजना खुली थी। इसका क्या था, इसका इंग्लिश होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इनने दर्शाया है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक से सुविधा वंचित व असुरक्षित बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी तथा पोषण संबंधी स्थिति में स्थानीय लोगों का संबंधित होना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है। कि जब जिला स्तर पर साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान अपनाया गया, जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा, तो इसलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भारत को कई सारे जिलों में बांट दिया गया था, और उसका मेन उद्देश्य था कि हमें जिलों को साक्षर बनाना है, जिलों को साक्षर बनाना है। और साक्षर और पढ़े लिखे शिक्षित दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पता है ना आपको, साक्षर और शिक्षित में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप पढ़ लेना कि क्या डिफरेंस है। तो हमें बच्चों को शिक्षित नहीं करना था उस टाइम पे लोगों को, बट हर एक लोग को साक्षर बनाना था, जिलों में बांट बांट के। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का था। और ये डीपीईपी हम लोग पहले इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1994 में, शुरू हुआ था पहले सिर्फ 5 में, और उनके भी 5 जिलों में स्टार्ट हुआ था, बट फिर इतना ज्यादा फेमस हो गया कि पूरी इंडिया पे लागू कर दिया कि भाई हमने बच्चे पढ़ाने हैं, बढ़िया कार्यक्रम है, अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ाओ इसको आगे, अच्छे से पढ़ाएंगे अपने बच्चे, अमेरिका अफ्रीका से आगे निकलेंगे। तो उसका उद्देश्य था। फिर इसके बाद डाइट स्टार्ट हुई थी, आपको पता है। तो ये सारा ये जो योजनाएं निकल करके आई थी, ये जो हम बोल रहे थे भाई बच्चों को ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, किसका मेन था, ये विकेंद्रीकरण के बाद आई थी। ये सारे जो सुझाव आए थे ना, विकेंद्रीकरण करने के बाद आए थे। क्योंकि देखो एक डाइट का हेड है, डाइट की प्रिंसिपल होती है हमारी, तो मेन अब डाइट का संचालन तो उनके हाथ में है ना। अब वहाँ पे शिक्षा अधिकारी आके ड्रामेबाजी करने लगेगा तो कैसे चलेगा। क्योंकि भाई शिक्षा अधिकारी रोज तू तो भाई आता नहीं है डाइट में, तुझे क्या पता भाई डाइट में क्या चल रहा है क्या नहीं, और ड्रामेबाजी दिखा रहे हैं, ये नहीं वो नहीं करो, तो कैसे चलेगा। तो इसलिए उसकी सारी पावर किसको दे दी गई थी, प्रिंसिपल को। भाई वही तो रेगुलर आ रही है, वही तो सारे डाइट के काम हम देख रही है, जो डाइट में प्रोग्राम हो रहा है, एससीपी हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, वही तो सारी देखेगी ना। तो इस वजह से डाइट का भी जो रिजल्ट है वो हमारा विकेंद्रीकरण का ही रिजल्ट है, ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें थी। पंचायत में क्या हुआ था, देखो हमारी संस्थाओं का क्या काम होता था, स्थानीय समुदाय का पंचायती राज संस्थाएं आई थी, विद्यालय प्रबंधन समिति बनी थी, है ना, माँ अध्यापिका संघ, अभिभावक शिक्षक संघ, ये सब। और सर्व शिक्षा अभियान आप पढ़ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा आता है 7.3 की सूक्ष्म स्तर पर आयोजन। ये तो जो हमने आयोजन पढ़ा ये पूरे भारत पर था, भारत के ग्लोबलाइजेशन में था। पूरे भारत में हमने पढ़ा, पूरे भारत में कैसे फैलाया गया, क्या क्या चालू है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो पूरे इंडिया में स्टार्ट हुई हैं। डाइट ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में ही है, हिमाचल प्रदेश की भी अपनी डाइट है, आंध्र प्रदेश की भी, मध्य प्रदेश की भी, हर राज्य में अपनी डाइटें हैं। तो ये जो सारे काम हुए ना डाइट बेसिस, डाइट वाले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये हुआ स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। बट अब हमने पढ़ना है कि सूक्ष्म स्तर पर आयोजन कैसे हुआ। बड़े वाले का तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या हमने स्टार्ट करा ये वो। अब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म स्तर पर आयोजन, जैसे छोटे लेवल पे, मतलब एक पर्टिकुलर जिला में कैसे उस योजना ने काम करा, या पर्टिकुलर स्कूल में उस योजना ने कैसे काम करा, या पर्टिकुलर एरिया में उसने कैसे काम करा। तो अब हमने उसके वो वाले में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या था, देखो पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि योजनाओं के निर्माण और कार्यक्रम में लोगों का निकट सहयोग सुनिश्चित किया जाना है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि हम जो आसपास के लोगों से मिलकर के ज्यादा सीख सकते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म आयोजन को तृणमूल स्तर पर आयोजन भी कहते हैं। तृणमूल का मतलब ही छोटा होता है, छोटे स्तर पर आयोजन हमें करना है। तो क्या क्यों करना है कि हमें स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी क्या है उसमें, और आवश्यकता रूप में प्राप्य संसाधनों को उत्पन्न करना, और प्रयोग में आने वाली सामग्री होना, सहयोगात्मक गतिविधि, ये सब। अब हमने पढ़ना है आयोजन का अर्थ क्या है, कि मतलब हम ये आयोजन क्यों कर रहे हैं।
इस आयोजन का मतलब क्या है, जो ये हम आयोजन कर रहे हैं इस आयोजन का मतलब क्या है, क्यों हम ये आयोजन कर रहे हैं इतने छोटे लेवल पर। तो इस आयोजन का क्या मतलब है, अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने या लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, ताकि हर एक लोगों तक पहुंच पाए और जो हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। दूसरा है कुछ क्रियाविधि और क्रियाकलापों का प्रस्तुतिकरण, कि कुछ क्रियाकलाप तो उन लोगों तक लाभ पहुंचाएं। सेकंड है समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यनीतियों की पहचान, कार्यनीतियों की पहचान कराना। देखो हमने बड़े लेवल पर तो बना दिया, ये योजना है, यहाँ पे ये लागू है, यहाँ पे ये ऐसे होगी, वहां पे ये ऐसे होगी, लेकिन छोटे लेवल पर क्या वो चीज आके काम कर भी रही है या नहीं कर रही। कल ही बताया था कोई चीज यहाँ पे इतनी होती है बट यहाँ पे आते 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 इतनी रह जाती है, तो हमको फिर उन छोटे पर्टिकुलर उस पर भी तो करना था ना भाई, कि ये चीज वहां पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही, मतलब ये कारगर सिद्ध हो रहा है वहां पे काम वाम करना भी या नहीं हो रहा है, तो क्या है। इसलिए हमको आयोजन करना पड़ा सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर भी पहचानने की जरूरत थी कि लोगों को इससे लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। और क्या था, देखो योजनाओं तथा कार्यनीतियों को मोबिलाइज करना, मतलब कि अच्छे से देख पाना, प्रगति की देखरेख करना और इसका वैल्यूएशन करना कि भाई ये सारी चीजें ठीक से हो रही है, जो भी बड़े लेवल छोटे लेवल पर सारी चीजें स्टार्ट हुई है तो क्या ये वर्क कर रही हैं, क्या ये किसी तरीके से लोगों के काम आ रही हैं, बच्चों के काम आ रही है, राष्ट्र का विकास हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें हमने इसमें जज करनी थी। तो अब इसके कुछ चरण थे, मतलब कुछ चरण थे, मतलब ऐसे नहीं कि इस स्टेट में गए या इस जगह पे गए पर्टिकुलर छोटे बड़े पे हमने लागू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं था, इसके कुछ चरण थे। पहले तो हमने वहां पे क्या करा, समुदाय का सशक्तिकरण करा। समुदाय का सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि वहां पे जितने भी समुदाय हैं इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी, उसके लिए ट्रेनिंग दी गई, उसकी व्यवस्था की गई ताकि जो वहां के लोग हैं शिक्षा के बच्चों के अधिकार को पहचान सके और उनके उत्तर ढूंढे। तो शिक्षा का अधिकार के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें करी थी, आपने सुना भी होगा मीना, मीना की वो कॉमिक्स चलती थी जो हर क्लास में बढ़ती थी, लड़की की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और बहुत सारी जो लड़कियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस किताब में वो उठाई जाती थी। लड़कियों से रिलेटेड ही क्यों, शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी थी सारी चीजें उस मीना की कॉमिक के द्वारा उठाई जाती थी, लोगों को बताई जाती थी, दी जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग पढ़े, है ना, ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजें, तो ये सारी चीजें करी जाती थी। उसमें देखो क्या क्या हो सकता था, मीना अभियान, है ना, माँ बेटी मेला, महिला सम्मेलन, किशोरी मेला, बाल शिशु मेला, प्रभात फेरी, पंजीयन अभियान, तो ये सारी चीजें थी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि इसमें क्या था, बच्चे को ड्रॉप आउट को कम करना, विद्यालय सर्टिफिकेट प्राप्त करना, लड़की की शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को स्पेशली स्कूल में मोटिवेट करना जाने के लिए, ठीक है, ये था। फिर सेकंड था, इसके बाद आयोजन दलों की पहचान करना। पहले तो समुदाय का सशक्तिकरण कर लिया कि क्या क्या समुदाय में है, मीन्स कि समुदाय में रहने वाले कौन से लोग शिक्षा से वंचित हैं, है ना, क्या क्या करना चाहिए उनको स्कूल भेजने के लिए और क्या सब, ये सारी चीज इसमें देखी गई। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, आयोजन दलों की पहचान करी। आयोजन दलों की पहचान से मतलब यहाँ पे क्या है, आयोजन के लिए आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए मात्र एक सरकारी अधिकारी अथवा एक अध्यापक पर्याप्त नहीं है। तो ऑब्वियसली इनकी जो समुदाय है कहीं पर कुछ भी हमको वो करना है कि कौन कौन से वहाँ पे लोग हैं जो शिक्षा जिनके पास नहीं है, जो शिक्षा से वंचित है, तो उसके लिए क्या कोई एक टीचर जाके उस पूरा पर्टिकुलर एरिया की गणना कर लेगा, पता कर लेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, कितने बच्चे रह गए हैं, तो ऑब्वियसली नहीं। इसलिए हमें उन आयोजन दलों की पहचान करनी थी जो पर्टिकुलर उन लोगों को पहचान सकें जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको रियल में शिक्षा नहीं मिल पा रही और जिनको सच में शिक्षा चाहिए। तो इसके लिए क्या करा था, यूई के प्रत्येक पक्ष पर अच्छी प्रकार सोचने और संगत बनाने के लिए दल बनाने की आवश्यकता है जिससे हमें पता चल सके। तो इसीलिए हमने दल बनाए थे बाद में। तो इस दल में कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक हो सकते हैं, कुछ वे लोग जिनके पास विचार है, कुछ वो सामाजिक इच्छुक है, मतलब कोई भी जो अपने काम करना चाहते हैं ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो कोई भी किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और हाँ भाई बदले में तुम्हें सैलरी मिलेगी, पर इन्होंने बदले में तुमसे कुछ एलिजिबिलिटी नहीं मांगी कि जैसे सीटेट क्लियर होगा तो ही पेपर दे पाओगे, नहीं। तो इन्होंने बता दिया कि तुम्हारे पास अगर विचार भी हैं कुछ और तुम अगर काम भी करना चाहते हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो, राजनीतिक से हो, सब तरीके के लोग ये सब काम कर सकते थे, आयोजन ग्रुप में आ सकते थे। हाँ, इस दल के चयन में थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य शामिल हो जो इस योजना से असहमत हो, ताकि वे इस योजना को कमजोर बिंदु को सामने ला सके और उनपे चर्चा कर सके। मतलब इसका मतलब था कि भाई देखो एक मेरा फ्रेंड है और एक मेरा दुश्मन है, अगर मैं अपने बारे में उससे 10 लाइनें लिखने के लिए दूंगी तो मेरा जो दुश्मन है मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, भाई बढ़िया है, ये है वो है, और जो मेरा दुश्मन है वो नेगेटिव चीज निकालेगा, नेगेटिव चीज ला ला के लिखेगा, जो चीज नहीं है ना वो भी लिखेगी, वो भी लिखेगा या लिखेगी। तो उसके अंदर यही है कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को उसके अंदर ऐसे लोग भी रखने चाहिए जो इस योजना से साथी नहीं है,
ताकि वो क्या करेंगे, इसकी नेगेटिव चीजें बाहर लाएंगे। अच्छा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, बटिया वाले बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा तुम उनको सैलरी दे रहे हो, उनको तो इतनी कम सैलरी दे रहे हो। अच्छा लड़कों की इतनी सैलरी, लड़कियों की इतनी सैलरी है। क्या करेंगे, वो मीन निकालेंगे, कमियां निकालेंगे। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कमियां निकाल के वो उनको इम्प्रूव कर देगी। फिर कहाँ से कमियां निकालोगे, जब तुमने कमियां निकाल दी, अब गवर्नमेंट ने फिर इम्प्रूव कर दी, और फिर कमियां निकालो, फिर गवर्नमेंट इम्प्रूव कर देगी। ऐसे क्या होगा, जो हमारा है लेवल इन योजनाओं का इम्प्रूव होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम भी अपनी कमियों पे सुधार कर ले तो हमारी पर्सनैलिटी भी जहर हो जाएगी। बट इसी तरीके से क्या करते हैं, अपनी योजनाओं में, दलों के आयोजन में अपने पॉलिसीज को डे बाय डे बिल्कुल जहर करते हैं कि हाँ बस बढ़िया से तैयार हो जाए, बच्चे बढ़ गया सब पढ़ ले अच्छे से, है ना। फिर इसके बाद आया अभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। हमने आयोजन दलों का निर्माण कर दिया, अब क्या करना है, अभ्यंतर आयोजन दल। अभ्यंतर आयोजन दल मतलब कि जहां पर वह पॉलिसी लागू की जा रही है, वो पर्टिकुलर एरिया, उसके अंदर रहने वाले दल, जो उसमें रह करके उन चीजों को ठीक करे, उनका इवेल्यूशन करे, उन पर शोध कार्य करे, ताकि उनके अंदर रह करके ही उन चीजों को और ज्यादा सुधारा जा सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी टफ यूनिट है, तभी मैंने कहा कि इसको 2 पार्ट में करोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आयोजन की गुणवत्ता अभ्यंतर आयोजन दल की क्षमता पर निर्भर करती है, क्योंकि मेन काम तो यही है, क्योंकि ये वहीं पे रह करके काम करेगा। प्रस्तावित योजनाएं जिला स्तर पर प्रायोगिक हो, जिन्हें पूरा किया जा सके। समस्त आयोजन प्रक्रिया सहभागी होनी चाहिए तथा ये सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षिक विकास के सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई एक समूह इस प्रक्रिया को अपनी ओर न खींच ले जाए। इस अभ्यंतर आयोजन दल का कार्य होगा विद्यालय विकास को संगठित करना, विद्यालय विकास को संगठित करना, और साथ में ही इस दल से ये अपेक्षा है कि विद्यालय की आवश्यकता को ग्राम स्तर पर ले जाना, ब्लॉक स्तर पर ले जाना, इस पर काम करना। ठीक है, इसके बाद हम मुद्दे एवं उपाय। जब हमने समुदाय का सशक्तिकरण कर लिया, आयोजनों की पहचान कर ली, अभ्यंतर आयोजन दल भी लिया है, तो अब हम ऐसे ढूंढेंगे कि अब इसमें गड़बड़ करने वाले मुद्दे कौन से हैं, मतलब कि ऐसी क्या चीजें हैं, बुराइयां, बेसिकली बुराइयां ढूंढेंगे और उनके ढूंढेंगे उपाय, कि मतलब ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो इसमें गड़बड़ वाली चीजें हैं, मुद्दे वाली, तो उन मुद्दों को ढूंढ के हम उनको दूर किस तरीके से कर सकते हैं, दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, आयोजन दलों को निर्माण के पश्चात अगला चरण है उन मुद्दों का आकलन करना, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा की पंजीयन, अवधारणा तथा गुणवत्ता से ये निर्णय लिया जाए कि ये काम जो है गांव स्तर पर करेगी, खंड स्तर पर करेगी, ये सारे काम। तो मुद्दे क्या हो सकते हैं, नीति में परिवर्तन लाने हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है कि जिनसे आपस में लड़ाई हो जाए, या कुछ मुझे ऐसे हो सकते हैं कि जिनके लिए जिला या राज्य अधिकारियों से हमें सहायता लेनी पड़े, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनका निपटारा आपस में ही हो जाए। तो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, साथ में हमें उनके उपाय भी ढूंढने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि आंकड़ों की आवश्यकता एवं स्रोत। देखो सभी योजनाएं समयबद्ध होती हैं। अगर हम योजना बना रहे हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे ना पहले कि भाई इस योजना का लाभ ये है और इससे इतने बच्चे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इतने बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा। बट हम कुछ डिसाइड तो करेंगे ना कि भाई इतने टाइम तक हम इसको अचीव कर लेंगे, हमारा एक गोल है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एज दी हुई है 30 ईयर्स के बाद हम लोग नई जॉब ले सकते हैं, पीआरटी में एज लिमिट है 30। तो हमारा ये टारगेट होगा ना कि हम 30 साल से पहले पहले जॉब ले लें। तो जब गवर्नमेंट ये योजनाएं बना रही है तो वो भी तो चाहेगी कि उनका एक पर्टिकुलर टाइम हो जिसमें वो योजनाएं पूरे हो जाए। तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी हमें आंकड़े चाहिए होते हैं कि कितने लोगों पे काम करना है, कितने लोगों को काम हो चुका है, कितने लोगों को हेल्प चाहिए, कितनों को हेल्प नहीं चाहिए, और उनको करने के लिए सोर्सेज क्या है, उनको करने के लिए सोर्सेज क्या है, हम कहाँ से उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से। ठीक है, तो जिनमें में विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्पष्ट आदेश होते हैं कि अवधारणा का कथन ये होता है कि 8 वर्ष तक सारे बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। तो इसमें क्या था, 14 वर्ष तक के सभी बच्चे होंगे। तो इसमें कौन कौन आएगा, अब हमें आंकड़े चाहिए। देखो कितने सारे आंकड़ों, किन किन के लिए आंकड़े चाहिए होंगे, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के। विद्यालयों की संख्या कितनी है, सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, रिकॉग्नाइज कितने हैं, एनजीओ कितने हैं, निःशक्त बच्चे कितने हैं, श्रमजीवी बच्चे कितने हैं, प्रवासी बच्चे कितने हैं, अत्याचार से पीड़ित बच्चे कितने हैं, विस्थापित परिवार के बच्चे कितने हैं, कैदी कितने हैं, गली या सार्वजनिक स्थान पर रहने वाले बच्चे कितने हैं, वेश्याओं के बच्चे कितने हैं, अंत्य सुविधाजन बच्चे कितने हैं। तो इन सब की हमें चाहिए होता है डेटा, इन सब चीजों का हमें डेटा चाहिए होता है, और फिर वो हमें चाहिए होता है सोर्स जहां से हम ये प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस आयोजन का अर्थ होता है कि लक्षित आयु समूह में प्रत्येक बच्चे का फोकस करना, और आंकड़े ऐसे हों कि प्रत्येक बच्चे की प्रगति की देखरेख की जा सके, हमें पता चल सके पहले बच्चे को इतना आता था, अब इतना आता है, और ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है सूक्ष्म आयोजन। आवास लिख दिया मैंने, सॉरी, आवास नहीं आएगा यहाँ, अभ्यास आएगा। ठीक है, सूक्ष्म आयोजन अभ्यास। तो ये सूक्ष्म आयोजन अभ्यास से क्या मतलब है हमारा,
देखो कि जब भी हमने अभियंता टीम का हमने गठन कर लिया और हमें पता कर लग गया कि भाई उनके काम ऐसे हैं, वो इतने काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, सब काम करने वाले हैं, और हमने शक्तियों का डिवीजन कर दिया कि ठीक है कि इनके अंदर कैसे क्या है, तब हमें क्या करना है, उनका अभ्यास करना है। अभ्यास इन द सेंस कि जो सारी चीजें हम लागू कर चुके हैं तो हमें ये देखना है कि क्या ये रियल में वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही, या बस हमने ये सारी चीजें कर दी, ये सारे हमने चरण फॉलो कर लिए, सारे काम कर लिए, बट रियल में जो चीजें हमने बनाई है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या भी नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, देखो किस पे हमें फोकस करना होता है, बच्चों की अटेंडेंस पर, ड्रॉप आउट पर, बच्चे कितने फेल हो रहे हैं, बच्चे कितने पास हो रहे हैं, है ना, और क्रियाकलाप देखने होते हैं, कितना खर्चा आ रहा है, योजना प्रस्ताव कितना है, टाइम कितना लगेगा, और ये सारी चीजें। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक जो कक्षा के अंदर जो हमारी अध्यापन सामग्री होती है, जब हम बच्चों को अंदर पढ़ा रहे होते हैं, अब हमने सारा बाहर का काम कर लिया, सब कुछ निपटारा कर लिया, और एक टीचर को हमने बच्चों की क्लास में भेज दिया पढ़ाने के लिए, ठीक है, सारे काम वाम हम सब कुछ कर चुके हैं, अब तक सारे काम कर लिए, सब चीजें कर ली, और एक टीचर भी हमने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। तो अब हमें उस पर ध्यान फोकस करना है जो हमें क्लास के अंदर करना है, ठीक है। हमने नेशनल लेवल पे काम कर लिया, स्टेट लेवल पे कर लिया, डिस्ट्रिक्ट में आ गए, अब हम पर्टिकुलर एक स्कूल के अंदर आ गए, जहाँ पे हमें बच्चों को ध्यान देना है कि अब हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अभी भी मेन यहाँ पे टारगेट जो है टीचर ही रहेगा, तो कक्षा का वातावरण हमें ध्यान रखना है, बैठने की व्यवस्था, कक्षा विन्यास, ग्रुप, पाठ्य सामग्री, अध्यापक अध्येता अनुपात, टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, अपनाई गई विधियां क्या है, कक्षा में पढ़ाने के लिए सुविधाएं हैं या नहीं, बच्चों की भागीदारी कितनी है, वर्बल और नॉन वर्बल, और अब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल वो कितने हैं, ठीक है, जो सहायक सामग्री होती है हमारी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स कितने हैं, कैसे हैं, और बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, पीटीएम हो रही है नहीं हो रही, एससीएम का क्या प्रोसेस है, जो हमारी स्कूल कमेटी मीटिंग होती है उसका क्या प्रोसेस है, आदि सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इसके बाद क्या था, थोड़ा सा बताया गया है कि अब तक जो योजनाएं चली थी उनका असर क्या है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, बच्चों की समग्र शिक्षा के लिए तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालय प्राय खेल कूद, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परियोजना कार्यक्रम, क्रिया आधारित अधिगम, जीवन कौशल के लिए सारे काम करते हैं। आप भी स्कूल से पढ़े हुए हो, आपको भी पता है सारी चीजें होती है, बट ऐसा नहीं है कि देखो रेगुलर बेसिस पे होती है, क्योंकि हफ्ते में खेल कूद का पीरियड एक लगता था, योगा का पीरियड एक लगता था, कभी लगा कभी नहीं लगा, तो ऐसा भी होता था। पढ़ाई के पीरियड लेकिन रेगुलर बेसिस पे लगते थे, तो ये चीज सही नहीं है। फिर इसके साथ ही इन्होंने बताया कि कुछ स्कीम्स आई थी, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, उसके अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, अध्यापक शिक्षा आई थी, गैर औपचारिक शिक्षा, महिला समंख्या, तो ये सारे कुछ इनके है, मतलब ये सूक्ष्म स्तर पर आयोजन किया गया था, ये उनके एग्जाम्पल है कुछ स्कीम्स के। तो ये स्कीम्स आप रट लेना, मतलब रट इन द सेंस कि आपको पता होनी चाहिए कि किसके अंतर्गत आई और इसके अंदर क्या था, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की हो गई है, बट एक छोटा सा टॉपिक और है, वो कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये इसको हम पहले ही ना डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये वही है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और डाइट, जो हमने जिला लेवल पे सारी चीजें स्टार्ट करी थी ना, एक जिला, फिर उसको ब्लॉक में बांटा था, और ब्लॉक के अंदर या एक जिले की पर्टिकुलर एक डाइट होती थी, तो वो ये चीज है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और डाइट। डाइट की फुल फॉर्म आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इनके कर्तव्य पढ़ने वाले हैं कि इनकी हमारे में कर्तव्य, हमारे पढ़ाने में इनकी कर्तव्य क्या है या इनकी भूमिका क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर तो सबसे पहले आपकी एक आ जाती है डीपीईपी, जिसे तो आप जहाँ पे भूलोगे ही नहीं, जहाँ पे अगर जिला का नाम आता है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। डीपीईपी इसकी प्रमुख परियोजना है, जिलाओं में काम करने वाली, जो सारी चीजें करती है, एक जिला की मॉनिटरिंग करती है, सारी चीजें, मतलब कुछ भी कह लो आप करती है। और इसमें क्या है, इनका काम क्या है, देखो एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है ताकि बच्चे पढ़ सके, है ना, बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, और टीचर पेरेंट्स मीटिंग करवानी है, मतलब बेसिकली चीजें ही हैं। लड़कियों के लिए और सीडब्ल्यू जो एसएन वाले बच्चे होते हैं, विशेषज्ञता अवस्था वाले बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। और जो भी स्कूल में जो टीचर के जो नौकरी भी निकालती है, तो ये जिला वाली निकालती है, DSSB दिल्ली का एक पूरा बोर्ड है, तो ये मॉनिटर करती है कि अध्यापकों की कितनी वेकेंट पोस्ट है, कितने भरने हैं, कितने बच्चे दिल्ली में अभी ऐसे घूम रहे हैं जिनका स्कूल में एनरोलमेंट नहीं है, और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एनरोलमेंट तो है लेकिन वो स्कूल नहीं आते, है ना। तो ये सारी चीजें हमने किसमें करनी है, जिला के अंदर आता है। काम है इन तीनों के, लेकिन वो आता है जिला के अंदर, ठीक है। ये सारे काम जो एक जिला के बेस पर पे रह के हो सकते हैं या हमें करने चाहिए,
फिर सेकंड आता है स्थानिक तथा सामाजिक मानचित्रण। स्थानिक में क्या होता है, ये संभव है कि आस पड़ोस के बच्चे एक से अधिक विद्यालय में पढ़ते हैं और ये भी संभव है कि एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एक से अधिक स्थानों से आते हैं। संभव क्या है, होता ही ऐसा है। आपके एक एरिया के बच्चे जरूरी थोड़ी है एक ही स्कूल में जाते हैं, अलग अलग स्कूल में जाते होंगे, और स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो ऑब्वियसली अलग अलग से आते हैं, तो संभव वाली बात नहीं, ये बात तो होती है। मात्र एक विद्यालय का प्रावधान कर लेना ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि सब बच्चे विद्यालय में आएंगे और अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। सही बात है, अगर आप एक एरिया में एक विद्यालय खोल दोगे, आप सोचो कि सारे बच्चे उसी स्कूल में जाएं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। और किसी जगह विद्यालय हो सकता है पर विद्यार्थी ना आए, या हो सकता है वो कुछ महीने के पश्चात स्कूल छोड़ के चले जाएं, या बहुत दिनों तक लगातार एब्सेंट रहे, और इस तरीके से वो दूसरे बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है इन सब चीजों के लिए, स्थान के बारे में अध्ययन करना होता है। पहले उस स्थान का पर्टिकुलर हर एक स्थिति का अध्ययन कर लो, सही है या नहीं, ठीक है या नहीं, बढ़िया है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद से फिर हमें उसके बारे में आगे देखना होता है। जैसे कि गांव में परियोजना का निर्माण करना, गांव का मानचित्र बनाना, परिवारों का संप्रेक्षण करना, रजिस्टर तैयार करना, लोगों के सुझाव लेना, इसके बाद हमने विद्यालय बनाना चाहिए और फिर बच्चों को उसमें घुसाना चाहिए। फिर क्या है, आयोजन के लिए संसाधन केंद्र। तो संसाधन केंद्र क्या होते हैं, देखो डाइट तथा डीपी के पास एक एक आयोजन तथा प्रबंधन इकाई होती है। ऑब्वियसली इस इकाई का मुख्य कार्य जिला परिप्रेक्ष्य तथा वार्षिक योजना बनाना होता है। क्लस्टर संसाधन केंद्रों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों से अपेक्षा है कि ये सारे काम करें। फिर क्या करना होता है हमें, जिला योजनाएं। अब आपको मुझे नहीं लगता कि जिला योजनाएं बताने की जरूरत पड़ेगी, एक तो जिला का नाम आता है, डीपीईपी, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारी परियोजनाएं हम पढ़ चुके हैं, तो वो सारी जिला योजना में आ जाएंगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिनिमम लर्निंग लेवल, ये सारी चीजें हमारे इसमें आ जाएंगी। तो इसका हमें मूल्य निर्धारण करना है कि जो हमने बोला है क्या वो चीज सही है, क्या यह योजनाएं हेल्पिंग है या सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, या क्या चीजें सारी, ये सारा इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कार्यान्वयन। ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि उनका कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब कि जो भी योजनाएं हमने लागू करी हैं उनको अच्छे से मॉनिटर करना, अच्छे से देखना, भाई काम वाम ठीक से कर लो, बढ़िया है। अगर तुम ऊपर वाले काम अच्छा करोगे तो नीचे भी बढ़िया होगा, फिर और नीचे नीचे दबाव आके बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी। बट ऊपर से ही काम लटका 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 होगा तो वो नीचे आके लटक ही जाएगा, ऐसे होता है। तो कार्यान्वयन हमने इसमें देखना है बेसिकली कि क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है विद्यालयों को मॉनिटर करना और पर्यवेक्षण। तो एक पॉइंट है, बस छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको नाम से समझ में आ गया होगा, विद्यालयों को मॉनिटर करना तथा पर्यवेक्षण। समुदाय की भूमिका क्या होती है, सारे बच्चे स्कूल आसपास आ रहे नहीं आ रहे, उनके हेल्पर कौन कौन है, क्या है, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा दी जाए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाए और उन्हें सहायता दी जाए, तो ये आसपास के लोगों का काम होता है देखना। फिर सेकंड होता है खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका। खंड शिक्षा अधिकारी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में भी बटे होते हैं ना, उनका भी हेड होता है, एजुकेशन मिनिस्टर से नीचे होते हैं ये स्टेट वालों में। तो इनका काम क्या होता है, हर स्कूल में, अलग अलग स्कूल में जाके इंस्पेक्शन करना, टीचर की अटेंडेंस चेक करना, भाई टाइम से आ रही है नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, टाइम से आते नहीं आते, पढ़ाते नहीं पढ़ाते, और पीने का पानी देखना स्कूल में, टॉयलेट वगैरह का देखना, पानी देखना, मिड डे मील देखना, ये सारे काम होते हैं इनके, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी।